So, good morning, ninth class. As you know very well, we have started our chapter Poverty as a Challenge, in which I told you about the poverty line and what a person are unable to get when he lives in poverty. In poverty में एक व्यक्ति जो है वो किन किन चीज़ों को असेस नहीं कर पाता या क्या चीज़ जो है दैट लेट्स टू बी ए पॉवर्टी, क्या चीज़ें जो है वो पॉवर्टी की तरफ ले जाती है, हम उन सब चीज़ों की डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज causes of poverty. As I have written on the whiteboard, so let's start. What are the major reasons of poverty in India? भारत में वो क्या कारण थे जिससे कि भारत के अंदर पॉवर्टी जो थी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है. So let's see on the whiteboard. So it is clear written the causes of the poverty. Today we are discussing what are the major causes, yeah, what were the main causes of the poverty in India. So first thing there, as you know very well, low level of economic development. Our economic development was very low when we were under the British colonial government. When India was under, as you know very well, once India was under the British government and they ruled over on India approx 200 years. 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज किया और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से उन्होंने whatever development they did in India or Indian point of view, they didn't do any type of development for the Indian point of view. They just were doing the development for only for the British एंड ओनली फॉर द इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब जितनी भी उन्होंने डेवलपमेंट की वो इंग्लैंड के लिए या उनके लिए की थी या जस्ट फॉर ओनली कंफर्ट. सो दे वर नॉट टेकिंग केयर अबाउट द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं की एंड दैट इज वाई द ग्रोथ रेट ऑफ अवर country, the economic growth rate of our country that was very very low. So because we were under the control of the Britishers. Second thing, that is the less job opportunities. This was the main reason, because when the development will not be there, then job opportunities will not be there in our country. So and the job opportunity will not be there, then people will be roam here and there, because if developments are not there, if the industries are not there, अगर इंडस्ट्रीज नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, देन पीपल आर फ्री. तो लोग फ्री हैं और वो क्या करेंगे. थर्ड वन, दैट इज अ हाई ग्रोथ इन पॉपुलेशन. दिस because this point is also attached when the people were free, less job opportunities were there, then the population growth was steadily increasing at that time. पॉपुलेशन जो ग्रोथ थी भारत के अंदर वो बढ़ती जा रही थी, लगातार बढ़ती जा रही थी. एंड व्हेन द जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट देयर, देन पर कैपिटा इनकम वाज वेरी वेरी लो. लोगों की जो पर कैपिटा इनकम थी दैट वाज आल्सो वेरी लो. सो दीज ऑल पॉइंट्स आर इंटीग्रेटेड टू वन अनदर. ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए. देखिए ये काज जो पॉवर्टी है ड्यू टू द लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑल दीज पॉइंट्स यू कैन सी कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है या हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था और बहुत कम था, तो उसी की वजह से हमारे देश में हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन था, पर कैपिटा इनकम बहुत लो था. Although after getting independence, India did a green revolution in agriculture field. हम लोगों ने green revolution को अडॉप्ट किया था and it also created jobs opportunities and but its effects were limited. But it was, you can say that it was limited. It was not under the whole country. जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी वो सारे कंट्रीज के अंदर नहीं हुई, स्पेशली इन द एरिया ऑफ हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश. दीज वर द सम ऑफ द मेजर एरियाज वेयर ग्रीन रेवोल्यूशन वाज सक्सीड. रेस्ट ऑफ द इंडिया वाज not having the job opportunities, so its effects were totally and totally limited. Industries in the public and private sector, no doubt, after getting independence, we set up our industries. We gave chances to the private sector to set up their industries. Both these sectors, private and public sector, both they created job opportunities for the population of India. But that was also limited. The area was also limited. Jobs were limited. These jobs were also limited. मतलब ये jobs थी वो बहुत limited थी और सब लोगों के लिए job जो थी वो opportunity नहीं थी. So and next you can see that the huge income inequalities. आप लोगों को पता है कि देश की आजादी के बाद जो इनकम इक्वालिटीज थी, पुअर्स अमंग पुअर्स
वर इन ए ग्रेट नंबर, गरीबों के अंदर जो गरीब थे वो बहुत संख्या में थे। अगर आज भी हम बात करें तो टुडे if we will talk about today, then approximately 20 crore, near 20 to 25 crore poor people are there in India. इंडिया के अंदर आज भी 20 करोड़ के करीब जो है वो लोग गरीब है। तो उस समय बात कर रहे हैं कि ह्यूज इनकम इक्वालिटीज, लोगों की इनकम इनइक्वालिटीज बहुत थी। कुछ लोगों के पास बहुत जमीनें थी और कुछ लोग कुछ भी असेस नहीं कर पा रहे थे, उनके पास इवन खाने पीने की फैसिलिटीज भी नहीं थे। थर्ड है अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एज यू नो वेरी वेल के जमींदारी प्रथा, जो जमींदारी प्रथा के अंदर जो जमींदार थे वो कई कई गांवों के मालिक थे। जब देश आजाद हुआ तो प्रिंसली स्टेट जो थी, उन प्रिंसली स्टेट में राजाओं के पास कई गांवों के गांव थे और ये जो था वो अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी जो था भारत में पॉवर्टी का एक कारण है। आल्दो देयर वर so many efforts have been taken by the governments to improve the condition of the poor people, गरीब लोगों की कंडीशन को सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव टेक्स किए हैं भी, जिससे कि गरीबों की जो है वो दशा को सुधारा जा सके, उनकी कंडीशन को सुधारा जा सके। उनमें से हम कुछ यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट इन द रूरल एरियाज। कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट। देश की आजादी के बाद कोशिश ये की गई थी कि जिन जमींदारों के पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं या बहुत ज्यादा जिनके पास गांव के गांव हैं, उनसे एक लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोसेस था वो गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया था, जिससे कि उनसे एक लिमिटेड अमाउंट में ही वो जमीन रख सकते हैं। उसके बाद जमीनों को रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, संपत्ति को रीडिस्ट्रीब्यूशन किया था, सेट को रूरल एरिया में हैव बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। कहता है इसको जो है गवर्नमेंट ने पॉलिसीज तो बनाई कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन और असेट रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। लेकिन इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम देखनी पड़ी। लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज। आप देखेंगे कि लैंड रिसोर्सेज के अंदर भी कुछ एरिया है जहां एम्पल ऑफ लैंड रिसोर्सेज है, कुछ एरिया जैसे है अगर हम बात करें तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, दे हैविंग एम्पल ऑफ लैंड रिसोर्सेज आर देयर, कोल, आयरन ओर, these are concentrated in India. But if we will come in the area of North India, Punjab, Haryana, limited land resources are there, and यहाँ पर land resources भी बहुत कम है। And next is the proper implementation of policy could have been improved the life of the millions of people। कहते हैं अगर ये policies जो थी वो properly implemented कर दी जाती, जो land redistribution की या जो असेट रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो पॉलिसीज है, इफ दे विल बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, अगर हम उनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड कर देते, देन इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द मिलियंस ऑफ द रूरल पीपल। तो इससे जो है वो जो लाखों लोगों की जो है वो लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो आप देख सकते हो कि ये दीज वर द पॉइंट्स दैट शुड बी टेकन अंडर कंसिडरेशन। ये जरूरी है इनको करना, और अगर ये पॉलिसी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है इनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए तो हम लोग और हमारे देश में पॉवर्टी रिडक्शन की जा सकती है। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड अबाउट द एंटी पॉवर्टी मेजर्स की गवर्नमेंट की तरफ से वो मेजर पॉलिसीज क्या थी जो गवर्नमेंट ने अपनाई थी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।